اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منہاج العربیہ الدرس ہے 14 الدرس الرابع عشر رابع عشر میں کل ہم نے آپ لوگوں کو اشارہ کیا آگا تھا. یہ والا درس پھر سے سمجھائیے، کل ہم مشغول تھے اس لیے نہیں سمجھے۔ ہاں تو اس میں دیکھیے جب یہ ضمیریں میں نے 14 لکھوائی تھی، اگر آپ نہیں سمجھی ہیں تو اس ضمیروں کو ویڈیو دیکھ کے لکھ لیجئے گا، نوٹ کر لیجئے گا. اب یہاں یاد رکھیے کہ یہ ضمیریں جب اسم سے ملتی ہیں تو کیا ہوتی ہیں؟ مضاف الیہ. جیسے بولنا ہوتا ہے کہ آپ کتاب ہے نا، کتاب کتاب مانے کتاب، بیت مانے گھر، ولد مانے لڑکا. صحیح. تو اس طرح سے جب ہمیں بولنا ہو. آگا تیرہویں درس میں ہمیں کچھ پوچھنا تھا آپ سے۔ جی بتائیے. وہ جو ترجمہ کرنا لکھا ہے ترجمہ کرو، اسی میں پوچھنا تھا۔ بتائیے کیا ہے وہ، ایک بتائیے جی. آگا وہی صفحہ آپ نکالیے تب نا۔ کون سا لیسن کا ہے بتائیے تو ہم نکالتے تیرہواں۔ ہیں. 13. جی یہ رہا 13. جی یہی پوچھنا تھا، یہی ایک تو آپ بتا دیجیے پھر ہم سب کر لیں گے، بھول گئے تھے۔ جیسے کیلا کھٹا نہیں ہے، کیلا کھٹا نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ کیلے کو بولتے ہیں موز. تو موز کو پہلے لائیں گے اور کہیں گے الموزو. نہیں ہے اس کے بعد لائیں گے یعنی لیسا. اور کھٹے کو کہتے ہیں حامض. حامض مانے کھٹا، تو حامض کے ساتھ با ملا دیں گے، کہنے الموزو لیسا بحامض، لیسا بحامض. انجیر بڑا نہیں ہے، دوسرا جو ہے سینٹینس ہمارے پاس، تو انجیر کو کیا بولتے ہیں؟ التینو. التینو. لیسا لائیں گے نہیں کے لیے، اور بڑے کو بولتے ہیں کبیر، تو کہیں گے بے کبیرن. التینو لیسا بے کبیرن. کیا عالم مخلص نہیں ہے؟ تو کیا عالم کے لیے کیا لائیں گے؟ حل العالم. حل العالم لیسا بے مخلص. ٹھیک ہے. پودا آگا بڑا سمجھ میں آ نہیں گیا۔ ہے تو کہیں گے الغرس لیسا بے کبیر. ٹھیک ہے. اس طرح سے انشاءاللہ آپ بنائیے گا. جی سمجھ میں آ گیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو اس درس میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کہ اس کا، اس کا ہم کیسے بولتے ہیں انگلش میں. انگلش کے پروناؤن اگر آپ لوگوں کو آتے ہوں تو انگلش میں 3 طرح کے پروناؤن ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے سبجیکٹو، ایک ہوتا ہے آبجیکٹو، ایک ہوتا ہے پوزیسو. صحیح ہے. پوزیسو پروناؤن کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو انسان کو کسی چیز کی ملکیت شو کرتا ہے. جیسے مائی بک، تو مائی کیا ہے؟ پوزیسو پروناؤن ہے. تو اسی مائی بک کو کرنے کے لیے عربی میں کیا کرنا ہوگا؟ عربی میں ہم کیا کریں گے؟ کتابی یا متکلم لا دیتے ہیں. کتابی یعنی میری کتاب. ٹھیک ہے. انگلش میں 3 طرح کے پروناؤن ہیں. ایک سبجیکٹو جیسے آئی، آبجیکٹو جیسے می، اور پوزیسو جیسے مائی. آئی، مائی، می. تو یہ جو ضمیریں کل ہم نے لکھوائی تھی یہ کیا ہے؟ پوزیسو بھی ہیں اور آبجیکٹو بھی ہیں. اس طرح سے سمجھ میں آئے گا آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے. پوزیسو اور آبجیکٹو. مثلا جب اس کو آبجیکٹ کی جگہ یوز کرنا ہوگا یعنی ایز اے کرم کی جگہ تب بھی استعمال کی جائیں گی، اور پوزیشن کچھ دکھانا ہو، کسی چیز کی ملکیت دکھانی ہو تب استعمال کی جائے گی. جیسے کتاب ہم نے جب کہا تو کیا ہو جائے گا؟ اس کی کتاب یعنی اس مرد کی کتاب. عورت کی کتاب کہنا ہوگا تو کیا کہیں گے؟ کتابھا. کیا بولیں گے؟ کتابھا. ٹھیک ہے. اس ایک عورت کی کتاب. کتابی یعنی میری کتاب. کتابوں کا تمہاری کتاب.
किताबों की, का पे जेर ले आइए, यानी किसी खातून से हम कहेंगे आपकी किताब, और मेल हो या फीमेल वो क्या कहेंगी, किताबी, मेरी किताब। तो हु यानी उसका, का यानी आपका, ये यानी मेरा, ये सब ज़मीरें हैं। ये ज़मीरें कितनी हैं जो कलम ने नोट करवाई थी, 14, सही। और ये कभी अकेले आती हैं, कभी इया के साथ आती हैं, इया के साथ, जैसे इयाहु, इयाहुमा, इयाहुम, इयाहा, इयाहुमा, इयाहुन्ना, इयाका, इयाकुमा, इयाकुम, इयाकी, इयाकुमा, इयाकुन्ना, इयाया, इयाना। सूरह अल-हम्द में आता है ना, इयाका नअबुदु, तो इयाका में जो का आ रहा है ना, यही वाला का है जो यहाँ है, और कुछ नहीं है, यही वाली ज़मीरें, ठीक है। और अरबी में याद रखिए ज़मीरें दो तरह की होती हैं। एक ज़मीरें वो होती हैं जो मिलती हैं किसी से, तन्हा नहीं आती। यहाँ पे देखिए, आपको थोड़ा एक बता दें और जो याद रहेगा इंशाअल्लाह। ज़मीरें दो तरह की होती हैं। हाँ अहसन, कौन बोला ये, साजिद साहब। एक होती है को बोलते हैं मुत्तसिल, एक होता है मुनफसिल। मुनफसिल क्या माने होता है मुत्तसिल मुनफसिल के? माने ये होता है जैसे हमने कहा किताब का, क्या माने हो जाएगा, तेरी किताब। तो ये का मिला हुआ है कि अलग है, मिला हुआ है ना। रब्बुहु, ये हु क्या है, मिला हुआ है, तो इसको बोलेंगे जमीर। जमीर है ये भी, जमीर, जमीर यानी प्रोनाउन, हिंदी में जिसे क्या कहते हैं, सर्वनाम, संज्ञा नाउन, सर्वनाम प्रोनाउन। तो किताबों का क्या है, जमीर है, मुत्तसिल है। लेकिन हमने कहा हुआ ज़ैदुन या अना वलदुन, मैं लड़का हूं, अना जमीर है, ये अना क्या है, जमीर है। तो याना क्या है, जमीर है, लेकिन क्या मिली हुई है कि अलग है, अलग है, इसीलिए कहेंगे जमीर है, लेकिन जमीर मुनफसिल है। हाँ ठीक है। और ये जो आती है, ये ऑब्जेक्ट और पोजीशन दोनों के लिए आता है। जैसे हम कहें ज़रबतु का, ज़रबा ये फेल होता है। वालेकुम अस्सलाम, जी बताइए कोई सवाल। देखें ज़रबा यानी उसने मारा, ज़रबता, ज़रबता तूने मारा, ज़रबतु कहना क्वालिटी है, यानी मैंने मारा, मैंने मारा। अब इसके साथ का लगा देंगे, ज़रबतु का, यानी ऐसे लिखेंगे, फिर ज़रबतु का, ये तो का यानी मैंने तुझको मारा। इसी ज़रबतु के साथ हु लाइए, ज़रबतु हु, मैंने उसको मारा, ज़रबतु हा, मैंने उस लड़की को मारा। वाज़े, ज़रबतुहुम, मैंने उन सबको मारा। तो यहाँ ये वर्ब के साथ आती हैं तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव हो जाएंगी ये, और ऐसे आएंगी तो पजेसिव रहेंगी, और इसको बोलते हैं नस्बो जर अरबी में। ज़मीरे मुत्तसिल, ज़मीरे, ये देखिए इसका नाम है ज़मीरे नस्बो जर, जो अरबी में और इंग्लिश में अगर आपको जिनको भी याद होगा, एक सब्जेक्टिव होती है आई, पजेसिव होता है माई, ऑब्जेक्टिव होता है मी, है कि नहीं। इसी तरह से क्या होता है, दे पजेसिव है, देयर क्या है,
अरे दे क्या है सब्जेक्टिव, देयर पजेसिव, देम क्या है ऑब्जेक्टिव, है ना, ये ऑब्जेक्टिव जमीर है। उसी हिसाब से अगर इसको आप बेस मान के चलेंगे तो ये जो मैं का बता रहा हूँ, हु बता रहा हूँ, या कल जो 14 लिखवाई है वो इस कैटेगरी में नहीं आती है। वो किस कैटेगरी में आएगी? इन दोनों में आएगी। वर्ब के साथ आएगी तो ये होगी, इसम के साथ आएगी तो ये होगी। यानी वर्ब के साथ ऑब्जेक्टिव रहेगी और इसम के साथ पजेसिव रहेगी, यानी हालत जर में आ जाती है वो। क्लियर? आप कौन है बेटा? जाओ। तो अब देख लीजिए, रब्बहू क्या माने हो जाएगा? उसका रब। तो उसका पे पोजीशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मिल्कियत आ रही। रब्बु का तेरा रब, रब्बी मेरा रब, अब्दुहू उसका बंदा, अब्दु का अना अब्दुका जलील, अना अब्दुका जलील यानी मैं तेरा जलील बंदा हूं। अब्दी मेरा बंदा, ठीक है। अब्दी में इस्मुहू उसका नाम, इस्मु का तेरा नाम, इस्मी मेरा नाम। ये जब हम पढ़ते हैं आमाल शब आशूर का करते हैं, कह रहे हैं वबे अस्माइकल हुस्ना, ठीक है, वबे इस्मिकल अकबर, यानी तेरे बड़े नामों के जरिए मैं सवाल करता हूँ, तेरे अस्माए हुस्ना के सदक़े में सवाल करता हूँ। जमालुका, जमल माने क्या होता है? ऊंट। जमालुका तेरा ऊंट। फरस माने क्या होता था? घोड़ा। फरसुहु उसका घोड़ा। कल्ब माने कुत्ता, कल्बुका तेरा कुत्ता। बबगाउन माने क्या होता था? तोता, बबगाई मेरा तोता। हदीका माने क्या होता है? पार्क, हदीकतुका तेरा पार्क। फाकिहा माने फल, फाकिहती मेरा फल। वरदुन माने गुलाब, वर्दुका तेरा गुलाब। असीसुन माने गमला, असीसी मेरा गमला। बैती मेरा घर, गरसुहु उसका पौधा, उसका पौधा। रब्बुका तेरा रब, रसूलुहु उसका रसूल। हम जब तशहुद पढ़ते हैं क्या कहते हैं? अशहदु अल्ला इलाहा वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद उसके बंदे, अब्दुहु उसके बंदे, व रसूलुहु और उसके रसूल। ठीक है, तो यही वाला हु है वहां भी। आई समझ में? जी। ईमानी मेरा ईमान, सदीकुहु उसका दोस्त, अब्दुहु उसका बंदा। अब ये सब सिखाया किस लिए गया है? पूछा जा रहा है मा इस्मु का, तुम्हारा नाम क्या है? कहा इस्मी, क्या लिखा? हमीदुन, मेरा नाम हमीद है। कैफा हालुका, तुम्हारी हालत कैसी है? हाउ आर यू? अरबी में क्या कहेंगे? कैफा हालुका, ठीक है, कि हाली तय्यबुन, मेरी हालत अच्छी है, सही है। मन रब्बुका, क्या माने होगा? मन माने कौन? रब्बुका तेरा रब, मन रब्बुका तेरा रब कौन है? रब्बी अल्लाहु, मेरा रब अल्लाह है। जी सभी का कुछ कहने? मुहम्मदुन रसूलुहु, क्या मोहम्मद उसके रसूल है? का नाम मुहम्मदुन रसूलुहु, मोहम्मद उसके रसूल हैं। अब हुआ अब्दुहु, क्या वो उसके बंदे हैं? नाम हुआ अब्दुहु व रसूलुहु, हाँ वो उसके बंदे हैं और उसके रसूल हैं। अल इस्लाम दीनी, इस्लाम मेरा दीन है। अभी तक क्या पढ़ा था? अल इस्लाम दीनुन, इस्लाम दीन है। अब क्या पढ़ा? इस्लाम मेरा दीन है। वहादा दीन सहलुन, और ये दीन आसान है।
तो अब समझ में आया इन ज़मीरों का कैसे इस्तेमाल करते हैं। मेरा तेरा उसका करना हो तो कोई मुश्किल आएगी, सही है, आनी नहीं चाहिए, फिर भी इसकी मश्क की जरूरत है, इतनी आसानी से नहीं आता। हम क्या बोलते हैं, मसलन ये जो ये वाली ज़मीर है, मैं आपको और बता दूं, रब्बना ग़फ़िर ली, ये जो ली जो आता है ना, ली रब्बना ग़फ़िर ली वाले दैया, ठीक है, वाले दैया यानी मेरे दोनों वालिदैन पर, तो मेरे ली यानी मुझे। तो ये जो आ रहा है ना बैती में, ये जो आ रहा है वही वाला ली में भी है, ठीक है। इंशाल्लाह जब गौर करेंगे तो पुरानी आयात में बहुत ज्यादा इसकी मिसालें मिल जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर एक सवाल, जी बताइए। जैसे हमें आकाश फातिमा को अरबी में चुड़ैल बोलना है तो कैसे बोलेंगे? अरे ऐसे नहीं बोलेंगे।